یہ نبی کی بات ماننا ہے، یہ ڈھکوسلا تم کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرو میں نبی کا ماننے والا ہوں، اور وہ میلاد کی محفل میں جا کے دیکھ لیجیے، اللہ اللہ، وہ محفلوں میں دیکھیے، وہ ان کے جلوسوں میں دیکھیے، وہی لوگ زیادہ ہیں جو کرکٹروں کے طریقے سے بال کٹائے ہوئے ہیں، وہی لوگ زیادہ دکھائی دیں گے جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کی محبت میں باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کا بال نبی جیسا نہیں ہے، ان کے پہناوے نبی جیسے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جو چیز بھی کر رہے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کچھ نہیں کھاتے۔ نعرہ لگانے پر نہیں ہے کہ نعرہ لگاتے سب کامیاب۔ اس آیت کے ذریعے بھی کیا پتہ لگا؟ یہاں بھی جھنڈی اور ڈنڈی، ڈنڈا جھنڈا نہیں ہے۔ سال میں ایک بار جو ہم برانڈ بدل دیا گیا اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا برانڈ نہیں، ایسا آئیے یہ جانتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قاری، توصیف، کبریائی، بڑائی،
بزرگی برتری خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نبی اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں کسمورہ کے نوجوان اور خصوصاً یہاں کے سابق پردھان صاحب جناب اختر علی صاحب کہ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کی کوششوں سے اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں اور اسی طریقے سے جس حساب سے بھی انہوں نے محنت کی ہے، قابل مبارکباد ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور یہ تمام حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ اس پروگرام کو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنا، آمین۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اطاعت رسول ضروری کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری کیوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، نبی کے پیروی کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہے؟ اگر ہم نبی کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیں، کیا ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی جواب ہے۔ اللہ نے اتنا علم کہ اللہ رب العزت کے ذریعہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے ذریعہ جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں نبی کی اتباع ضروری کیوں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اتباع کہتے کسے، اتباع کے معنی مطالب کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں کہ پیروی کرنا، پیچھے چلنا، بات ماننا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے چلنا، بات ماننا۔ بات کس کی مانی جائے؟ پیچھے کس کے چلے ہم؟ پیروی کس کی کریں؟ ہر بات میں، ہر قدم پر جب کوئی بات ہو، جب کوئی کام کرے، چاہے وہ شریعت اور چاہے وہ دین کے تعلق سے ہو یا اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے پیچھے ہم نہ چل کر نبی سے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بار بار کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت، یہ دو اصول ہونے چاہیے۔
कुरान उठाओ और हदीस उठाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या कहते हैं, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, दोनों को मिलाओ, दोनों प्रमाण। तब क्या हुआ, नबी की इत्तिबा। नबी की इत्तिबा में दुनियावी चीजें नहीं लाएंगे, मन गढ़ंत चीजें नहीं लाएंगे, पीरों की बात नहीं लाएंगे, मुरीदी वाली बातें नहीं लाएंगे, या इसी तरीके से झंडी और डंडी में नहीं रहेंगे। आज इत्तिबा क्या है, नबी की इत्तिबा सिर्फ झंडी और डंडी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बस यही है कि साल में एक बार रबी अव्वल की 12 तारीख आ जाए, ये बड़े बड़े झंडे हो जाए, ये बड़े बड़े लाठी उठाकर हम चले आए। अब बाजारों में ये ऐलान करते हैं हम हाजिर हो गए हैं, हम हाजिर हो गए हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये सदाएं बुलंद हो। ये इत्तिबा है, ये इत्तिबा है। अगर ये इत्तिबा है तो सहाबा किराम पीछे ना, सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ना छूट जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत उनसे न छूट जाए। वो नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बांसुरी की आवाज को भी सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उनके उम्मती मोहब्बत के नाम पर डीजे भी बजा रहे हैं, बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े झंडे लगा रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि सबसे बड़े मोहब्बत रसूल का दावा है, हम है ये कहते नबी, हम वही पाने रसूल है, हम ये समझते हैं अब हमारी नैया पार हो गई, नहीं पार हुई। अभी इताअत बात नबी ने करने को कहा है, नबी ने मिलाद मनाने का हुक्म दिया, सहाबा ने किया है, सहाबा के बाद लोगों ने किया, नहीं किया, किया, दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहीं नहीं, सहाबा के अदवार में नहीं, ताबईन के अदवार में नहीं, ये आया था, गोया ये पेट पालने का जरिया है। जरा एक मिसाल समझिए, हमारे जो बुजुर्ग हजरात आज से 20 साल पीछे चले जाए, जब ये महीना आता था क्या कहते थे, ईदों का ईद आ गया, या कहते थे कि 12 वफात आ गया। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप पीछे की जिंदगी देखिए, 20 साल 25 साल पहले क्या कहते थे, 12 वफात आया। आज जश्न ईद मिलादुन नबी, नाम बदल दिया गया, ब्रांड बदल दिया गया, और ये समझ रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ब्रांड है। नहीं, ऐसा आइए ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी क्यों है। क्या बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हम पार नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज, नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत, गौर से सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में गोया हम अल्लाह के पीछे चलते, नबी की पैरवी करने में हम अल्लाह की पैरवी करते, यानी बात हम नबी की करेंगे, बात नबी की मानेंगे, और साथ में अल्लाह की भी बात मानेंगे। दलील कुरान मुक़द्दस में सूरह निसा आयत नंबर 80, अल्लाह कहता है मन युती रसूल फक़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। जो अल्लाह का जो रसूल की इताअत करे वो अल्लाह की इताअत करे, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बात को माना, जो नबी की बात को मान रहा है अल्लाह की बात को मान रहा है। और ऐ नबी याद रखिए, ऐ नबी आप जान लीजिए, ऐ नबी ये जो आपकी बातों को मान रहे हैं, ऐ नबी जो आपके कहे पर चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, ये लोग आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, ये आपकी इत्तिबा के साथ साथ मेरी भी इत्तिबा कर रहे हैं। मेरे भाइयों ये जान लीजिए, अल्लाह के नबी की इताअत में, रसूल अल्लाह के नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत है, अल्लाह के पीछे चलना है, रसूल के पीछे चलने के साथ साथ नबी के पैरवी के साथ साथ अल्लाह की भी पैरवी हो जाए। अब इससे अगर कोई मुंह मोड़ ले, आपकी बात ना माने, आपकी बातों को छोड़ दे, कुरान हदीस की बातों को अहमियत ना दे,
अपने मनमानी दीन में कोई भी काम करे, ऐ नबी हमने आपको इन पर निगरान बना कर भेजा। ये बात गौर कीजिए, अल्लाह की इताअत कब है? जब नबी की इताअत। नबी की इताअत सिर्फ कर ले, अल्लाह की बात ना माने तो भी मुकम्मल है, अल्लाह की बात मान ले, नबी की बात ना माने तो भी मुकम्मल है। दोनों की बातों को हम मानेंगे तो उसके बाद क्या हुआ? हकीकी मानों में हम नबी की इत्तिबा करने वाले। अगर इससे कोई फिर रहा है तो नबी अब आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें बतलाइए, ये कुरान की बात है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी, ये अल्लाह का फरमान है, हमने आपको निगरान बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस कलाम में 2957 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या ही वादे अंदाज में कहा। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम ये समझ के बस एक पहलू उठा, उसके बाद मनमानी को। अल्लाह के नबी ने कहा, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इत्तिबा की उसने अल्लाह की, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी। जो मेरी बातों को मान रहा है वो अल्लाह की बातों को मान रहा है, जो मेरे पीछे चल रहा है अल्लाह के पीछे चल रहा है, जो मेरी पैरवी कर रहा है वो अल्लाह की पैरवी कर रहा है। वमन असानी फ़क़द असल्लाह, जो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरी बातों को छोड़ रहा है, मुझसे आगे चल रहा है, मेरी बातों को नहीं मान रहा है, कुरान हदीस की बातों को अहमियत नहीं दे रहा है, गोया वो मेरी नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहा है। फैसला अब आप इताअत किसकी कर रहे हैं, फरमाबरदारी किसकी कर रहे हैं, बात किसकी मान रहे हैं, हुक्म किसका चल रहा है, हुक्म का पैरवी किसकी कर रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? फैसला बात मैं नहीं फैसला। आज अल्लाह के इताअत नहीं तो नबी की इताअत। आज हम फैन किसी और के हैं, आज हम उस्वा किसी और को मानते हैं। नबी की जिंदगी से हमें मतलब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज दुनिया में हम अपने आप को बनाए हुए हम फलाह के फैन हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसकी बातों को मानते हैं, हम उसका जो है ना उसकी नकाली करते हैं, ये तमाम चीजें हो रही। नबी ने जिस बाल से मना किया, नौजवानों को जिस बाल से नबी ने मना किया, आज नौजवानों बाल रखे हुए ये किनारे किनारे को उड़ा देते हैं, बीच में खड़ा खड़ा रखवा देते हैं। किस जानवर की तरह लगता है मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम? क्यों रखे हुए? वो फला क्रिकेटर है ना, वो फला टीम में खेलता, वो रखा हुआ इसलिए मैं रखा हूं। ये नबी की इत्तिबा है, ये नबी की बात मानना है। ये ढकोसला तुम कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, अपने आप को ये जाहिर करो मैं नबी का मानने वाला हूं। और वो मिलाद की महफिल में जाकर देख लीजिए, अल्लाह अल्लाह, वो महफिलों में देखिए, वो उनके जुलूसों में देखिए, वही लोग ज्यादा हैं जो क्रिकेटरों के तरीके से बाल कटाए हुए हैं, वही लोग ज्यादा दिखाई देंगे जो ये अपने आप को कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उनका बाल नबी जैसा नहीं है, उनके पहनावे नबी जैसे नहीं है। और उसी तरीके से वो जो चीज भी कर रहे हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से कुछ नहीं खाया। अब फैसला आप करिए, नबी की इत्तिबा और अल्लाह की इत्तिबा, नबी की पैरवी अल्लाह की पैरवी, नबी के पीछे चलना अल्लाह के पीछे चलना हो रहा है या नहीं हो रहा? नंबर 2, नबी की इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल। एक क्या है कि नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती। अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हर शख्स चाहेगा, हम और आप चाहेंगे कि नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। दुनिया के जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमारा पैदा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पालने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खिलाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत करे तो बात बनेगी। लेकिन ये बात बने कैसे, तरीका क्या, शुरुआत कहां से करें? आइए मैं एक फार्मूला आपको बताऊं और उससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की मोहब्बत हमें कितने आसानी से मिलती है।
उठाइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 21, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, गौर से सुनिए इस आयत को, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। बात किसकी मानी? नबी की बात। हुक्म किसका चलना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह। अब बात यहां फिर फंसी, नबी की इत्तिबा तो होती नहीं हमसे। हम तो बात उनकी मानते हैं जो कुब्बे वाले हो, जुब्बे वाले हो, बड़ी बड़ी टोपियों वाले हो, जिनके चादर और गादर हो, जिनके आगे पीछे चलने फिरने वाले हो, उनके ऊपर से मक्खियां हटाने वाले हो, हम उनकी बातें मानते हैं। बात नबी की नहीं मानते। अल्लाह कह रहा है नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत तुम कर दो, ये काफी नहीं है। तुम अल्लाह की दुआई दो, अल्लाह से मोहब्बत कर दो, ये काफी नहीं है। मैं नहीं मानता हूं। तुम ये कहो कि अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूं, पहले तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो। ऐ नबी आप कहिए कि इत्तिबा तो आपकी होगी, उसके बाद युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह सर्टिफिकेट दे रहा है, अल्लाह ये कह रहा है मैं मोहब्बत करूंगा। अल्लाह जब मोहब्बत करेगा दुनिया में हमारी हालत दुरुस्त हो जाएगी, कारोबारी हालत हो, माशी हालत हो, बीमारी के दौर जो है, ये जो भी हमारे लिए हुकूमत के फैसले हो, जैसे भी जो चीजें हो सब दुरुस्त होंगे। लेकिन कब? युहिब्बुकुमुल्लाह, जब अल्लाह मोहब्बत करेगा। इसी पर बस हो जाएगा कि हम नबी की इत्तिबा कर ले, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा। नहीं, अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहों को माफ करता हूं। नबी आप कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह उसके बाद क्या करेगा? आप मोहब्बत करने लगेगा, गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला है, बेशक रहम, बहुत माफ करने वाला है। क्या वाज़ेह हो रहा है? बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहीं ना डंडी का जिक्र है ना झंडी का जिक्र है, ना डंडा है ना झंडा है। बात सिर्फ ये हो रही कि नबी की बात माननी है और रसूल की बात माननी है। नबी और रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानी, यही दो लोगों को बात मानो, कामयाबी। ये झंडे लगा लेने से कामयाबी की जमानत नहीं मिलेगी। जरा और आगे बढ़ो। नबी की इत्तिबा जरूरी क्यों है? नबी के पीछे चलना जरूरी क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अहादीस आ जाए, जो भी बात आ जाए, उसे मिनवान तस्लीम करना जरूरी क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। पहली चीज इताअत रसूल में, अल्लाह के नबी की इताअत में अल्लाह की इताअत। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करेगा जब नबी की हम इत्तिबा करेंगे। नंबर 3, जब नबी की हम इताअत करेंगे तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। आज चाहिए हमें रहमत अल्लाह की, हम परेशान हो चुके, कारोबार ठप पड़ चुका, बीमारियों ने घेर लिया है, परेशानियों ने डेरा कर लिया है। चाहिए अल्लाह की रहमत करे। हर तरफ देखिए जहां पर है, यह लगार हमारे ऊपर है। आज बिलखते बच्चों के फोटो आपने देखे होंगे, और मासूम बच्चे रोते हुए आपने देखे होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत चाहिए। हमारे मस्जिदों की आफियत के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। हमारे मदारिस के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। हमारे पर्दे के लिए, हमारे माँ बहनों की इज्जत और आफियत के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। ये मिलेगा कहाँ? किस दुकान से खरीद कर लेकर आए? किस चौराहे पर ये मिल रहा है? ये कहां पर जाने के बाद मिलेगा?